کہ دل میں اسی کا خوف اور خشیت رہتی ہے۔ لیکن ہمارے ہاں معیار کوئی اور ہے۔ ہمارے ہاں جس نے جناب ایٹم بم بنا لیا وہ سپر پاور ہے، نہیں، لیکن بندہ مومن جس کو سپر پاور مانتا ہے وہ رب کی ذات ہے۔ جس نے کلمہ طیبہ پڑھ دیا وہ اپنے رب کو ہی سپر پاور مانتا ہے، وہ کسی اور کو۔ پتہ ہے ہمارا ملک کیوں پیچھے ہے؟ ہمارے حکمرانوں نے کبھی سپر پاور مانا ہی نہیں رب کو۔ وہ تو کرسی پر بیٹھ کے کرسی کے نشے لیتے ہیں۔ کبھی انہوں نے مانا ہوتا، یہ تو اسلام کی پاور کو نہیں مانتے، اگر انہوں نے اسلام کی پاور کو مانا ہوتا اور رب کو سپر پاور مانا ہوتا آج اسلام غالب ہوتا دنیا کے اوپر۔ انہوں نے کبھی اسلام کی بات نہیں کی۔ اسلام کی بات کرتے تو اسلام نے غالب ہونا تھا۔ یہ تو اسلام کی بات کرنے والوں کو بند کرنے والے لوگ ہیں، جن کے پیچھے دنیا آج جناب جن کے نام لیتی ہے۔ انہوں نے اسلام کا کیا حال کیا آپ سارے جانتے ہیں۔ میں اس بات کو زیادہ دور نہیں لے جانا چاہتا۔ جب بندہ کلمہ طیبہ کے تقاضوں کو سمجھ لیتا ہے تو پھر اس کی نظر میں سپر پاور صرف رب ہی کی ذات ہے، وہ کسی اور کے اوپر اعتماد اور یقین بھی کرتا نہیں۔ اگر آدمی اپنے عمل سے ثابت نہ کرے اور اپنے اعتقاد سے ثابت نہ کرے تو کلمہ طیبہ صرف زبان کی حد تک ہے۔ کلمہ طیبہ کے ثمرات کیا ہے؟ جب ایک بندہ مومن کلمہ زبان سے کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ، تو وہ اقرار کرتا ہے کہ میرا کوئی الہ نہیں مگر صرف اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی ہے۔ تو اس وقت بندے کے اندر چند چیزیں فطری طور پر پیدا ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پر اعتماد و یقین، اسی کو وہ رازق سمجھتا ہے، وہی عزت دینے والا ہے اور وہی ذلت دینے والا ہے، وہی ہماری زندگی کا مالک۔ لہذا لا الہ الا اللہ کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو پڑھنے کے بعد بندہ مومن اپنے سارے معاملات اپنے رب کے حوالے کر دیتا ہے۔ لیکن یہ بندہ مومن کی بات ہے۔ ہم بندہ مسلمان کی صف میں آتے ہیں۔ آپ لوگ جو ہیں وہ بندہ مسلمان کی صف میں آتے ہیں۔ بندہ مومن بننے کے لیے کچھ چیزیں ضروری ہوتی ہیں جو ہماری زندگی میں نہیں ہے، وہ ہمیں اپنی زندگی میں لانی چاہیے۔ جب بندہ مومن اس بنیادی عقیدے کو اپنا لیتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ میرے سارے معاملات کا مالک اور والی اللہ تعالیٰ ہے، وہی میرا خالق ہے، وہی میرا مالک ہے، وہی میری عزتوں کا رکھوالا ہے، وہی میری پریشانی دور کرنے والا ہے، تو اس وقت بندہ مومن کی زندگی میں ایک عجیب کیف آ جاتا ہے۔ ایک عجیب کیف آتا ہے جب بندہ اپنے رب کے اوپر اس کو مالک بھی سمجھتا ہے، اپنی عزت کا رکھوالا بھی سمجھتا ہے، پریشانی میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہے۔ جب سارا کچھ چھوڑ کے ایک بندہ مومن صرف اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے تو پھر اس کو زندگی میں مزہ آتا ہے، پھر اس کو ایک عجیب کیف آتا ہے جس کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ بندہ مومن کی زندگی بھی عجیب ہوتی ہے۔ فرمایا حیات المومن کلھا خیر، مومن کی ساری زندگی خیر ہی ہے، مومن کی زندگی خیر ہی خیر ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیسے؟ تو میرے آقا مولا جناب خاتم المرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ مومن جب اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لاتا ہے، اسے خالق سمجھتا ہے، اسے اپنا مالک سمجھ لیتا ہے، اسے اپنا رازق سمجھ لیتا ہے، اسے ہی حل مشکلات سمجھتا ہے، اسے ہی حاجت روا سمجھتا ہے۔ جب جانتا ہے کہ میرا سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے تو اس وقت بندہ مومن کی ساری زندگی خیر سے عبارت ہوتی ہے۔ جب بندہ سب کچھ اس کو سمجھ لیتا ہے، لیکن جس کا یہ مطمع نظر ہو جناب دکان 5 منٹ میں نے پہلے بند کر لی تو یہ نہ ہو مجھے رزق نہ ملے، تو اس نے کیا اللہ کو رازق سمجھا؟ جس نے یہ سمجھ لیا کہ جناب میں آج
इस जगह ना पहुंचा तो रिस्क नहीं मिलना, नहीं नहीं, वो तो पत्थर के अंदर कीड़े को भी खा लेते हैं। सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम एक पहाड़ के ऊपर देखिए तो आपने एक खूबसूरत पत्थर देखा, पत्थर जब आपने देखा तो उस पत्थर को तोड़ा तो देखा एक बंदा वहां से निकला, उसने कहा मैं 400 साल हो गए यहाँ इबादत कर रहा हूँ, और उसके सामने एक जो है अंगूर का दरख्त लगा हुआ था, उसने कहा यहाँ से मुझे खुराक दी जाती है, पत्थर के अंदर 400 साल। हज़रत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम आपकी बारगाह में आज तक मालिक जैसी इबादत इस बंदे ने की, ऐसी इबादत तो कोई कर सकता नहीं, कोई ऐसी इबादत नहीं कर सकता। अल्लाह पाक ने जवाब में इरशाद फरमाया, ऐ ईसा तो सच कहता है, ये बंदा जैसे इबादत कर 400 साल हो गए मेरी इबादत करता है, वो भी पत्थर में रह गए। हम तो बाहर जाए के मस्जिदों को आबाद नहीं करते, हम पत्थर में रह के उसने 400 साल इबादत की। हज़रत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम के अर्ज करने पर अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, ईसा तू ठीक कहता है, जैसे इसने इबादत की ऐसे किसी ने इबादत नहीं की, लेकिन सुन, मेरे महबूब की उम्मत होगी वो 2 रकात नमाज नफल पढ़ेंगे, फर्ज नहीं नफल पढ़ेंगे, इसकी 400 साल इबादत से ज्यादा उनकी फजीलत, 400 साल इबादत से ज्यादा फजीलत होगी। आपने नमाज को हल्का समझा हुआ है, पता है क्यों? आपने सिर्फ जुबान से कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया, तकाज़े किसने पूरे करने है ना? हदीस में जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह कह लिया दाखिलहुल जन्नह, वो जन्नत में जाएगा। तो कलमा जन्नत की चाबी जरूर है, लेकिन इसके दंताने भी है। नमाज, रोजा, हज, ज़कात ये भी पूरे करने हैं, ये भी इसके तकाज़े, ये भी हम ही ने पूरे करने हैं। बरकत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब बंदा रब को सब कुछ समझ लेता है, मेरा हाजत रवा भी वही है, मेरी मुश्किल में मुश्किल कुशा भी वही है, रिस्क भी उसी ने मुझे अता करना है, मेरी इज्जत का रखवाला भी वही है, वही हर जरूरत मेरी पूरे करेगा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तो उस वक्त बंदा मोमिन की सारी जिंदगी खैर से इबारत होगी, सारी जिंदगी उस वक्त को खैर से इबारत होती है। और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजीद फरमाया, अगर उस बंदे पर अल्लाह तबारक व तआला का एहसान हो जाए, ये नहीं है कि सिर्फ लफ्जों की हद तक उसने कह लिया जनाब मेरा मालिक भी अल्लाह, मेरा खालिक भी अल्लाह, राज़िक भी अल्लाह और इज्जत देने वाला भी अल्लाह, तो हुजूर ने आगे हदीस मुबारका में इरशाद फरमाया, हुजूर ने फरमाया जब अल्लाह ताला उस बंदे पर एहसान करे तो वो सरापा शुक्र बन जाता है, वो फिर कुछ शुक्र भी अदा करता है। ये नहीं है कि जनाब वो कहे कि नहीं नहीं मैंने मेहनत की तो मुझे रिस्क मिला, ना, वो कहता है जो कुछ भी मिला ये मालिक का करम है, ये मालिक का मेरे ऊपर फजल है। फिर वो ये नहीं है कि नेकी हो जाती है तो वो कहता है जनाब ये मेरी तरफ से है। वो कुछ भी हो जाए, वो गुनाह हो जाए तो कहता है ये मेरे नफ्स की शामत है, नेकी हो जाए तो कहता है ये मेरे रब की तौफीक है। ये बंदा है मोमिन है, जिसने कलमा पढ़ा और फिर कलमे के तकाजों को पूरा किया, उससे अगर कोई गुनाह सरजद हो जाता है तो वो कहता है ये मेरे नफ्स की शामत है, ये मेरे नफ्स की बर्बादी है। और जब नेकी हो जाती है तो कहता है ये मेरे रब की मेरे ऊपर तौफीक है, मुझे उसने तौफीक दी और मेरे ऊपर उसने फजल फरमाया कि अल्लाह ने मुझे नेकी की तौफीक अता कर दी। ये बंदा है मोमिन है। और फिर हुजूर ने इरशाद फरमाया अगर कोई मुसीबत आती है तो फिर समझता है कि देने वाला मेरा रब है। जब ये समझ लेता है कि देने वाला रब है तो फिर नजर मुसीबत पर नहीं रहती, देने वाले की तरफ चली जाती। फिर बंदा खुशी से उस मुसीबत को गले लगा लेता है। जब रब किसी के ऊपर कोई मुसीबत भेजता है ना तो उस मुसीबत में मुब्तला करके बंदे को अपने करीब करता है। बंदे को जब करीब करना चाहता है तो फिर उसको एक आजमाइश के अंदर वो मुब्तला करके देखता है मेरा बंदा कितना जो है वो मेरे ऊपर यकीन रखता है। अगर वो साबित कदम रहे और उसको साबित कदमी नसीब हो जाए तो रब फिर उसे अपना कुर्ब अता फरमाता है। देखें हम मियां किराम अलैहिस्सलाम के ऊपर कैसी कैसी आजमाइशें। सब्र अय्यूब को पढ़ लीजिए। हज़रत सैयदना अय्यूब अलैहिस्सलाम के जिस्म के अंदर जब जिस्म से कीड़ों को ग़िज़ा दी गई तो आपके जिस्म से अगर कोई कीड़ा नीचे गिर जाता तो आप उठा के दोबारा अपने जिस्म में उसे रख लेते थे कि
मेरे जिस्म से रब ने तुम्हें ग़िज़ा दी है, और उस हाल में आपने शुक्र अदा किया। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम जब भागे कौम से तो दरख्त को कहा कि तू मुझे पनाह दे। अब दरख्त ने पनाह तो दे दी, आपकी कमीज मुबारक का कुछ हिस्सा बाहर रह गया। तो आपको पता है गलत काम में शैतान मुआवजत करता है। हज़रत सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम के लिए जब आग जलाएगी, आप कोई करीब नहीं जा सकता कि फेंका जाए, तो शैतान का इन्हें मशवरा दिया कि मिनजनीक के जरिए तुम इन्हें आग में फेंक दो। तो हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम का जब कमीज मुबारक का कुछ हिस्सा बाहर रह गया, तो लोगों ने कहा आप क्या करें, ये तो दरख्त के अंदर चले गए। शैतान लाइन ने कहा सोचने की क्या बात है, आप ऐसा करो आरा ले आओ और ऊपर से दरख्त को चीरना शुरू कर दो, इनका काम भी तमाम हो जाएगा। जब आरा चला हजरत सैयदना ज़करिया अलैहिस्सलाम के सर के ऊपर पहुंचा तो कुदरत की आवाज आई, आप उफ नहीं करनी है, इसलिए कि तुमने दरख्त से पनाह मांगी, अगर मुझसे पनाह मांगते तो मैं तुम्हें ऊपर उठा लेता। आप उफ नहीं करनी, उफ की तो नबियों की फहरिस्त से भी तुम्हें निकाल दूंगा। तो अल्लाह ताला फिर बंदों को आजमाइश में मुब्तला करता है। क्यों करता है? उन्हें अपने कुर्ब अता फरमाता है। फिर जब वो साबित कदम रहते हैं तो अल्लाह ताला फिर उन्हें अपना कुर्ब नसीब फरमाता है, उनके दर्जात बुलंद फरमाता है, उन्हें आजमाइश की भट्ठी में जलाकर कुंदन बनाता है। फिर अब वो इस काबिल हो जाते हैं कि अपने रब की बारगाह में बैठ सके, फिर अल्लाह ताला उन्हें अपनी हुजूरी नसीब फरमा देता है। बंदा मोमिन के ऊपर आजमाइशें फिर आती है, लेकिन हुजूर ने क्या फरमाया, जब मुसीबत आ जाए तो बंदा मोमिन का हाल ये होता है कि मुसीबत में भी नजर अपने रब पर होती है। मालिक कोई बात नहीं है, जब तू सुख देता है तो तू ही देता है, मुसीबत भी तो तेरी तरफ से है। फिर वो सब्र करता है। जब सब्र करता है तो कुरान कहता है इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, सब्र करने वालों के साथ रब खुद मौजूद होता है। सुभान अल्लाह। अब करबला के मैदान में अगरचे हजरत इमाम हुसैन की तादाद कम थी, हक वाले थे, हक वाले हमेशा ही कम होते हैं। शैतान की तरफ लोग भाग के नहीं जाते। आप यहाँ समझ रहे हो भाई, मैच हो तो लोगों की तादाद देखिएगा, अगर नमाज हो रही होती है तो तादाद देखिएगा। हक जिधर भी होता है कम ही होते हैं, लेकिन होते मर्द हैं। हक के साथ खड़े होने वाले मर्द ही होते हैं। कभी किसी कमजोर दिल को हजरत खालिद बिन वलीद का जुमला था, शाला बोझ दिल कदे नींद ना आवे, ये हजरत खालिद बिन वलीद का जुमला है। कमजोर बंदा जो है वो सोने के लिए तो है, मर्द होता है जो हक के मुकाबले, जो हक लेकर खड़ा हो जाता है बातिल के मुकाबले में। हजरत सैयदना इमाम हुसैन के बारे में कुरान पढ़ के देखिए। अब हक पर कौन था? जिधर सब्र था, और सब्र वाले वो थे जिनके साथ रब मौजूद था। करबला के मैदान में इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, हजरत सैयदना इमाम हुसैन करबला के मैदान में आपने सब्र किया तो मैदान करबला में रब आपके साथ मौजूद था। इस तरह मौजूद था जिस तरह गारे हिरा में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, अबू बकर डरो नहीं, इन्नल्लाह हमारा, रब भी हमारे साथ है। गार में मैं और तू नहीं है, हमारा रब भी हमारे साथ है। तो बंदा मोमिन जो होता है, मुसीबत आ जाए तो फिर वो गिला शिकवा नहीं करता, जनाब ये क्या अच्छा पहन सकते हो, अच्छा खा सकते हो, तो फिर जब रब फाका दे तो फिर भी शुक्र अदा करो, सर सजदे में रखो, मालिक ये तुम्हारी ही तरफ से। या रसूलल्लाह या अली या अली जिंदाबाद 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 लब्बाइक या रसूलल्लाह लब्बाइक लब्बाइक या रसूलल्लाह। गौर करें तो आपको पता चलेगा, इन बातों के ऊपर गौर किया जाए तो पता चलता है। पता किस बात का चलता है कि ये बात हमारे ज़मीर में शामिल है। इरशाद बारी ताला इन्ना अरदना अमानता अलस-समावाति वल-अर्दि वल-जिबाली फ़अबैना अन यहमिलनहा वअशफ़क़ना मिनहा व हमलहा अल-इंसान इन्नहु काना ज़लूमन जहूला। फरमाया कि हमने अपनी अमानत को ज़मीनों पर पेश किया, आसमानों पर पेश किया, पहाड़ों पर पेश किया, लेकिन अपनी तमाम तर कुव्वतों के बावजूद, अपनी तमाम तर तवानाइयों के बावजूद
हर एक चीज इनकार करती गई कि ऐ मेरे करीम रब, हम तेरी अमानत उठाने के काबिल नहीं। आसमान ने इनकार किया, जमीन ने इनकार किया, पहाड़ों ने इनकार किया, हर एक चीज ने इनकार किया। लेकिन इंसान, मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं, यहाँ एक नुक्ता है कि सारे इनकार कर रहे हैं। या रब्बुल जलाल, हम तेरी अमानत नहीं उठा सकते। आसमान कह रहे हैं कि हम नहीं उठा सकते, जमीन कह रही है मैं नहीं उठा सकती, पहाड़ इतने ऊंचे इतने बुलंद, और वो भी कह रहे हैं कि हम नहीं उठा सकते। और ये आम से इंसान जिसके बारे में आगे फरमाया कि इन्नहु काना ज़लूमन जहूला, इस इंसान ने उठा लिया। मुफस्सिरीन किराम ने यहाँ बहुत मजे की बात देखी है, और मुसन्निफ कहते हैं कि ये एक प्यार की बात थी, ये एक प्यार की कहानी थी, ये एक मोहब्बत की कहानी थी। जो इंसान ने कहा था कि मैं उठा लूंगा, ये भी एक प्यार की बात थी। मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं कि हजरत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम ने ये अमानत क्यों उठाई। जवाब में बड़ी प्यारी बात इरशाद फरमाते हैं। आप कहते हैं कि सारी मखलूक की नजर जो थी वो अमानत के ऊपर थी। अमानत क्या चीज है और इसके बोझ पर थी। लेकिन हजरत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मौला, मैं अमानत को नहीं देखता, मैं अमानत को क्यों देखूं। हर चीज ने अमानत को देखा और अमानत के बोझ को देखा। वो अमानत क्या थी, उसका बोझ क्या था। हर चीज की नजर, आसमान ने देखा अमानत क्या है, उसका बोझ कितना है, मैं नहीं उठा सकता, अल्लाह की बारगाह में इनकार कर दिया। जमीन ने देखा, उसने कहा मैं नहीं उठा सकती, इनकार कर दिया। पहाड़ों के ऊपर जब ये अमानत पेश की गई तो पहाड़ कहने लगे बारिला, हमारे अंदर इतनी सख्त और ताकत नहीं कि हम तेरी अमानत को उठा सके। हज़रत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम ने क्यों उठा ली। मुफस्सिरीन किराम कहते हैं हज़रत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम ने आज की मालिक, मैं तो अमानत को देखता ही नहीं हूँ, न इसके बोझ को देखता हूँ, मैं तो ये देख रहा हूँ देने वाला तू है, तू जो दे रहा है अमानत भी कबूल करूंगा और तौफीक भी तुझी से मांगूंगा कि इसको सहने की भी ताकत और हिम्मत अता फरमा। या रसूलल्लाह, या अली, या अली, जिंदाबाद 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 या रसूलल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूलल्लाह। ये अमानत इसके इलाही की अमानत थी। तभी तो कलंदर लाहौरी हजरत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह आप बोल उठे, कहने लगे न कर तकलीफ ए जिब्राइल मेरे जज्बा और मस्ती। हजरत जिब्राइल अमीन से प्यारे, इकबाल ने कहा था ना इंसान फरिश्तों से अफजल है। क्यों? फरिश्तों ने इंसान को सजदा किया है, लेकिन इंसान बनना बड़ा मुश्किल काम है। इंसान ढूंढने से मिलते हैं। बंदा तो हर कोई है ना, लेकिन यहाँ बंदे भी कम है। बंदे का माना होता है बंदगी वाला, आदमी का माना होता है जिसके अंदर आदमियत हो। यहाँ तो वो लोग मिलते हैं जो इंसानियत को पीछे छोड़ आए, जो बंदगी को पीछे छोड़ आए, जो आदमियत को पीछे छोड़ के आए हैं। यहाँ तो इंसान जनाब भाई भाई का गला काट रहा है, और दीन के लिए किसी को दावत दी जाए तो वो कहते हैं जनाब ये तो आपका काम करो। यहाँ तो तरह तरह की बातें सुनने के लिए इंसान जो है ना, इंसान वो जब इंसान बन जाए तो इंसान देखना हो तो दाता अली अजमेरी को देखो, इंसान देखना हो तो सुल्तानुल हिंद हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी को देखो, इंसान देखना हो तो पीर मेरे अली शाह साहब को देख लो, इंसान देखना हो तो पीर सियाल को देखो, इंसान देखना हो तो बाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी को देखो, इंसान देखना हो तो अल्लामा इकबाल को देखो। हजरत जिब्राइल अमीन से मुखातिब होकर कहते हैं ना कर तकलीफ ए जिब्राइल मेरे जज्बा और मस्ती की, तन आसान अर्शियों को जिक्र तस्बीह तवाफ होला। हजरत अल्लामा इकबाल ने ये हजरत जिब्राइल अमीन से कहा, कहते हैं जिब्राइल इंसान के पीछे ना, ये तो अल्लाह अज़्ज़ा व जल के इश्क को उठाने वाला है। और इसी इकबाल ने इन्नहु काना ज़ुलूमन जहूला की तरफ एक और अंदाज में इशारा किया कि ए अल्लाह अज़्ज़ा व जल मेरे दिल के अंदर तूने इश्क की तड़प
اور چنگاری رکھی ہے، لہذا یا اللہ عز و جل میں تمہیں یاد کرتا ہوں، اور جب تیرا محب اور عاشق بن کر تیرے دربار پر آتا ہوں تو تیرے در پہ سجدے دیتا ہوں۔ اے میرے مولا، جب دنیا آرام کی چادر تان کر سو جاتی ہے، عاشق صادق کو اس وقت بھی چین نہیں آتا، وہ اٹھ کر تیرے دیدار کی جلوے کے لیے آتا ہے اور زبان حال سے کہتا ہے، کبھی اے حقیقت منتظر، کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ اے میرے محبوب حقیقی، اے میرے رب العالمین، اگر تیرا جلوہ نظر آ جائے تو میرے سجدوں کا انداز ہی بدل جائے، میرا ذوق و شوق بدل جائے، میرا انداز طلب بدل جائے۔ اس لیے کہ ایک مقام پر جا کر اقبال کہتا ہے، اے میرے مولا، جب بھی تیری بارگاہ میں آتا ہوں یہ عشق اور زیادہ ہو جاتا ہے، اور حال یہ ہے کہ تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ میں کیا چاہتا ہوں۔ یہ علامہ اقبال کی عاجزی تھی۔ 1.25 کروڑ مرتبہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے والا اقبال 1.25 کروڑ مرتبہ۔ یہاں تو 5 نمازیں لوگوں کے اوپر بوجھ بنی ہوئی ہے، اور پھر بات کرتے ہیں جناب اقبال کی داڑھی نہیں تھی، تو اقبال کی حقیقت تو جان، اقبال کی داڑھی نہیں تھی، تو نے فوراً کہہ دیا اقبال کی داڑھی نہیں تھی، اور بھائی علامہ اقبال کا اپنا مکان بھی نہیں تھا، کبھی ادھر نظر کی، علامہ اقبال کے اپنے مربع بھی نہیں تھے، ادھر تو تم نے کبھی نہیں سوچا، علامہ اقبال کا اپنا مکان نہیں تھا، بناتے ہوئے نہیں سوچتے ہو، صرف نظر جاتی ہے داڑھی پر، علامہ اقبال کی داڑھی نہیں تھی۔ وہ اقبال کا مسئلہ، ہم اقبال کے محتاج نہیں ہے شریعت میں، ہم شریعت میں رسول اللہ کے محتاج ہیں۔ حضرت علامہ اقبال سے ہمارا پیار بھی ہے اور محبت بھی ہے، اگر انہوں نے داڑھی نہیں رکھی تو یہ مطلب نہیں کہ ہم علامہ اقبال کی تقلید کرتے ہیں، ہم حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہیں۔ انہوں نے داڑھی رکھی ہوئی تھی اور انہوں نے کہا ہر مسلمان کے اوپر ایک مشت داڑھی رکھنا واجب ہے، لیکن امت کو کیا پتا امام کی کیا، ہمارے امام کی کیا قدر و منزلت ہے، وہ کتنے عالی رتبہ انسان تھے، وہ کتنے بڑے انسان تھے، جن کے بارے میں جبرائیل امین نے آ کے کہا تھا، یا رسول اللہ ایک نعمان نامی آپ کے دین کی احیا کرے گا، اللہ نے آپ کو بشارت کی عطا فرمائی، لیکن امت اتنی ناشناس، یہ جناب انگریزوں کے نام پڑھنے میں فخر محسوس کرتے ہیں، یہ انگلش کی کتابوں میں جناب انگریزوں کی سٹوریاں پڑھنے میں فخر محسوس کرتے ہیں، اور یار کبھی غزوہ بدر بھی پڑھ کے دیکھو، کبھی غزوہ احد بھی پڑھ کے دیکھو، ہم مسلمان کوئی لاوارث تھوڑی ہے، خالد بن ولید کو پڑھ کے دیکھو کہ کیسے ان کے ہاتھ میں اور تلواریں ٹوٹ گئی، یہ بھی تو پڑھنے والی باتیں تھی نا۔ ہماری امت کو جناب، یہ آج بھی میں پڑھ رہا تھا، بل گیٹس کا وہ آیا ہوا تھا ایک عالم، اس نے کہا ہم مسلمانوں سے جو ڈرتے ہیں وہ اس وجہ سے ڈرتے ہیں کہ ان کے اندر جذبہ جہاد موجود ہے، ان کے اندر اسلام کی محبت موجود ہے، ان کے اندر رسول اللہ کی محبت موجود ہے، ہم نے ایسی ویکسین تیار کی ہے کہ اس ویکسین کے ذریعے ہم ان کی جذبہ جہاد کو کمزور کریں گے۔ یہ کیا سمجھتے ہو قرآن ہے فی قلوبہم مرض، ان کے دل میں کوئی اور ہی مرض ہے، قرآن کہ یہ نہیں ہے تو صحیح، لیکن یہ تو نہیں ہے نا قرآن سے جناب بھاگ کے تم اندر پر چھپ جاؤ، مسجدوں کو ویران کر دو، درباروں کو تالے لگا دو، جہاں سے شفا ملتی تھی وہ در تو تم بند کر رہے ہو، کس کے کہنے پر؟ غیروں کے کہنے پر، جو کہتے ہیں ہم ان کی جہاد کی قوت چھیننا چاہتے ہیں، ہم رسول اللہ کی محبت ان کے دل سے نکالنے والے ہیں، ہم جو ہے ان کو کمزور کریں گے۔ اس نے پورا کالم لکھا ہے، میرے پاس موجود ہے اس کا خلاصہ جو ہے، لیکن مسلمان آپ بھی نہیں سمجھتے، آپ بھی جناب ہم ایسا کر دیں گے تو جناب یہ نہیں، اس نے اقوام متحدہ میں جا کے بات کی تو ادھر موت پڑتی ہے، ادھر بھی تو بات کرے نا، جو ادھر بات کرتے ہیں انہیں جیلوں میں ڈال کے اقوام متحدہ میں جا کے بات کرنے کا کیا معنی ہے؟ اندر کوئی درد تو ہے نا، فی قلوبہم مرض، ان کے دل میں کوئی اور بیماری ہے، جس کے بارے میں حضرت کہتے ہوتے تھے پیڑا اور تھے پھکیاں اور، یہاں کوئی اور مرض لگے ہوئے ہیں، تم قرآن سمجھ کے کہتے ہو ہم نہیں انکار کرتے قرآن نہیں ہے، قرآن ہوگا وائرس ہے، لیکن یہ بھی ادھر سے ہی آیا ہے جن سے یہ محبت کرتے ہیں، ہم نہیں، ہم جدھر محبت کرتے ہیں ادھر سے شفا ہی شفا آتی ہے، ادھر سے تو حضرت ابو قتادہ آنکھ لے کے آ جاتے ہیں، یا رسول اللہ آنکھ نکل گئی جے، نبی
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं इरशाद फरमाया तो जाओ किसी अस्पताल में, हुजूर ने इरशाद फरमाया कतादा बताओ आंख चाहते हो या जन्नत दे दूं? ये मालिक की जन्नत है, आंख चाहिए या जन्नत दे दूं? हजरत कतादा कहने लगे सोनिया जन्नत आज रहमत अगर जोश में है तो जन्नत दे दो। हुजूर ने फरमाया जा कतादा रब तुम्हें जन्नत अता फरमाएगा। थोड़े से चले वापस आ गए, अर्ज करने लगे हुजूर एक बात समझ में नहीं आई, ये किसी हदीस में नहीं है, मैं अपना विजदान बयान कर रहा हूँ। हदीस जरूर मौजूद है, आंख हजरत अबू कतादा की निकली, जो आगे वाली बात है वो मैं अपनी बयान कर रहा हूँ। किसी को पसंद आए तो कबूल, नहीं तो सौदा लेने वाले बहुत से गाहक हैं, हम जबरदस्ती सौदा बेचने वाले नहीं है। जिसके दिल में इश्क की आग लगी हो वो सौदा जल्दी कबूल कर लेता है। हमें ये भी नहीं है कि आप नहीं रखेंगे, तो बहुत है जिनको रसूलुल्लाह ने नवाजा हुआ है, जो कहते हैं ये बातें सुनने को मिल जाए। हजरत कतादा थोड़े से आगे के वापस आ गया, अर्ज करने लगे सोनिया एक मसला समझ नहीं आया, जन्नत में सारे दो आंखों वाले होंगे या कोई एक आंख वाला भी होगा? सहाबा किराम को मांगने का तरीका आता था, यहाँ जनाब खातमुन नबिय्यीन लफ्ज ना कहना है तो उसने मुल्क को क्या बचा मांग के देना है हुजूर से, मांग के तो उसने देना था जो तहे मजार चला गया। हजरत अबू कतादा वापस आ गया, अर्ज करने लगे सोनिया जन्नत में सारे दो आंखों वाले होंगे, कोई एक आंख वाला भी होगा? हुजूर ने फरमाया जन्नत तो हसीन है, हसीन ही लोग उसमें होंगे, जन्नत खूबसूरत है, खूबसूरत लोग उसमें जाएंगे, जवान सारे जन्नत में सारे ही जवान जाएंगे। हुजूर की बारगाह में बूढ़ी अम्मा आ गई, तो उसने कहा सोनिया बताओ मैं जन्नती हूँ? हुजूर ने फरमाया नहीं, बूढ़े तो जन्नत में नहीं जाएंगे। अम्मा जी थोड़े नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना दिल लगी के लिए ये बातें किया करते थे अपने गुलामों के साथ, जैसे हजरत जाहिर के साथ आप फरमाते थे, हजरत जाहिर के साथ भी हुजूर मजाक फरमाते थे। तो वो बूढ़ी अम्मा परेशान हो गई, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अम्मा जी परेशान भी होती हूँ, जब जन्नत में जाओगी तो तुम जवान हो, जन्नत में जब तुमने जाना है तो जवान होके जाना है, जन्नत में सारे ही जवान। हजरत कतादा अर्ज करने लगे सोनिया फिर जन्नत में दो आंखों वाले होंगे तो लोग मेरे साथ मजाक करेंगे एक आंख वाला किधर आ गया? जन्नत जो दी है तो फिर आंख में दे, जन्नत आपने अपनी मर्जी से दी है, आंख मेरी मर्जी से दे दो। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपकी आंख का डेरा आपने हथेली के ऊपर रखा, आंख की पुतली को आपने उठा के आंख के अंदर डाल के दुआ में तहत मुबारक लगाया। हजरत कतादा कहते हैं मैं समझ भी नहीं सकता था कि इसका आंख के ऊपर मेरा तीर लगा, उसकी नजर दूसरी आंख से और भी ज्यादा तेज हो गई। तो जिन लोगों ने उधर उम्मीदें लगाई हुई है, जिधर से ये बीमारियां आती हैं, उनके पास तो कुछ नहीं, हम तुम्हें दावत फिक्र देते हैं, मुंह करो गुम्बद खजरा की तरफ, बात करो सोनिया हम इस काबिल नहीं कि आजमाइश की भट्टी में जलाए जा सके। या रसूलुल्लाह नजर कीजिए उम्मत आज जो है वो लुट रही है, हुजूर थोड़ा गर्म फरमा दीजिए। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शफा भेज दी, सुभान अल्लाह। लेकिन मांगो तो सही, इन्होंने तो जनाब वो उस मुल्क से कर्जा लेने शुरू कर दिया, मदद लेनी शुरू कर दी जिन्होंने सरकारी इमारतों के ऊपर रसूलुल्लाह के खाके बनाए। हुजूर इस उम्मत से राजी होंगे? यह मुल्क पाकिस्तान सिर्फ औलिया अल्लाह की वजह से बचा हुआ है, वरना इनकी जो करतूत है ये भी कोई बात करने वाली है। यूरोपीय यूनियन नाराज हो जाएगी, हम सफीर को नहीं निकालते, तुम मोहते को और 20 तारीख आने दो। रसूलुल्लाह ने जिनकी ड्यूटी लगाई हो वो पहुंचने वाले फैजाबाद, फैजाबाद भी याद करना है, कभी फिर लब्बैक वाले दोबारा आए, उसका एक एक जर्रा भी याद करना है, और उसने क़यामत के दिन गवाही देनी है अल्लाह की बारगाह में। सोने रब्बा यहाँ से बड़े बड़े लोग गुजरे, लेकिन जो तेरे महबूब के आशिकों ने यह रंग बनाया कभी किसी ने ऐसा बनाया भी नहीं, और ना क़यामत तक आप कोई बना सकता है बाहर ऐसा। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, जिंदाबाद जिंदाबाद, लब्बैक या रसूलल्लाह, लब्बैक लब्बैक या। इमाम गज़ाली आप फरमाते हैं कि जब मैंने ला इलाहा कह लेता हूँ तो ये समझता हूँ कि मैं मारिफत इलाही के समंदर में गोता हो गया। जिसने पूरी दिन तस्बीह छिकी रखी जनाब ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ और मोहम्मद रसूलुल्लाह की शान भी समझ और नामूस रिसालत के लिए घर से बाहर भी निकल
सिर्फ तस्बीह लेने से कुछ नहीं होता है। मौला अली ने तस्बीह भी पढ़ी, लेकिन खैबर का दरवाजा एक हाथ से भी उठा लिया। तस्बीह रूह को तकबीयत जरूर देती है, लेकिन सिर्फ तस्बीह सब कुछ नहीं होता है। तलवार भी रसूलुल्लाह ने खुद उठाई कि मेरी उम्मत जिहाद के लिए तैयार रहे, और हुजूर ने फरमाया जब तक तुम जिहाद करते रहोगे तुम गालिब रहोगे। ये कहते हैं जनाब, बाद में बयान देते हैं, जो लोग कश्मीर के बारे में कहते हैं वो जिहाद से आजाद होगा, वो लोग कश्मीर के गद्दार हैं। तुम सब बड़े वफादार आए हो जनाब। ये वफादार है जिन्होंने जनाब कभी बात नहीं की कि कश्मीर की बच्चियों की इज्जतें लूटी जा रही है। खुद लूटने वाले कैसे बात कर सकते हैं? बात तो उन्होंने करनी है ना जिन्होंने रसूलुल्लाह का दीन पढ़ा हुआ है, जिन्हें बताया गया है कि जिसने किसी की इज्जत और आबरू के ऊपर हमला किया वो रसूलुल्लाह का गद्दार है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा हज्जतुल विदा के ऊपर फरमाया था कि तुम्हारी इज्जतें और तुम्हारा खून और माल एक दूसरे के ऊपर हराम कर दिया गया, अब तुमने ना हक नहीं खाना है। इन्होंने क्या बात करनी है जिन्होंने दीन खुद नहीं पढ़ा हुआ? दीन की तर्जमानी तो कोई दीन वाला ही कर सकता है ना। जिहाद से हमने पूरी दुनिया के ऊपर इस्लाम को गालिब करना है, वो जिहाद से ही होना है। वो कभी इन किनारों से नहीं होना कि जनाब हम ये वो बात सुनने वाले हैं जैसे सुल्तान महमूद गजनवी के घोड़ों की टापू से हिंदुस्तान की औरतों के हमल गिर जाते थे। हम उन शेरों के मानने वाले हैं और हम उनके वारिस हैं। ये लोगों को जनाब ये कल क्या कहेंगे कि हमने जंग करनी है, तुमने क्या किससे जंग करनी है? जो लोगों से भी अगर पाकिस्तान कैसे खुशहाल होता है, लेकिन हमारे हुक्मरान ने कभी इस तरफ तवज्जो ही नहीं दिलाई। वो कहते हैं जनाब इस चीज की भी कमी है, इस चीज की भी कमी है, तो पूरा किसने करना है? जब भी पूरा होगा तो वो इस्लाम ने ही पूरा करना है। पाकिस्तान के सारे मसाइल को इस्लाम ने पूरा करना है, लेकिन इस्लाम के लिए फिर कुर्बानी भी इस्लाम मांगता है। इस्लाम के लिए हमने उठना भी है, इस्लाम के लिए हमने टाइम भी देना है, मस्जिदों को भी आबाद करना है। अंग्रेजों ने कहा था जिस दिन जुमे के इज्तिमा जितने मुसलमानों की फजर की नमाज में लोग होंगे उस दिन इस्लाम दुनिया के ऊपर गालिब आ जाएगा। उन्होंने कहा था ना, अब मस्जिदों के अंदर हमने जुमे जितना इज्तिमा किसने करना है? वो उन्होंने तो नहीं आके करना, वो मैंने और आपने करना है। वो हम अपनी जिम्मेदारी समझे। अगर चाहते हो इस्लाम पूरी दुनिया के ऊपर गालिब आ जाए तो फिर नमाज पंज करने के लिए आप मस्जिदों को बंद, कुरान पाक की तिलावत करो और जिहाद की आयतें अपने बच्चों को सिखाओ और बताओ कि गज़वा बदर में हजरत अली मुर्तजा कहते हैं जब गज़वा बदर में काफिरों ने हमला किया और गुमसान का रन पड़ा तो हमने देखा सबसे आगे जो तलवार उठा के जा रहे थे वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यहाँ लोग कहते हैं दीन अमन से फैला, अमन से भी फैला और तलवार से भी फैला। तलवार भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उठा के बता दिया कि जब मुश्किल वक्त आ जाए आगे वाले ना माने तो फिर तलवार उठा के उन्हें बताओ हमारी तलवार तुम्हारा फैसला करेगी। मोमिन जो होता है वो अल्लाह पाक के ऊपर नजर रखता है। जिसने अमेरिका के ऊपर नजर रखी हो वो वाला मोमिन है। ये तो कुरान का फैसला है, मैंने कुरान आपके सामने पढ़ा है। बस गलती ये है आपने कभी इसका तर्जुमा नहीं पढ़ा। पहली बात है खोलते ही नहीं है मुसलमान, घरों में इंतजार करता है कुरान। क़यामत के दिन इसने शिकायत भी करनी है, इसने शिकायत भी करनी है। पहली बात है मुसलमान खोलते ही नहीं है। अगर खोलते हैं तो सादा अरबी पढ़ के चले जाते हो, यार तर्जुमा पढ़ो तुम्हें पता चले कि ये जो बातें हम कह रहे हैं ये नहीं है कि हम रात को बैठ के घर में बनाते हैं। ये सारा कुछ कुरान और हदीस में मौजूद है, सारा कुछ मौजूद है कुरान और हदीस के अंदर। ये बातें मौजूद है, सिर्फ हम पढ़ते नहीं है। और जब कोई बताए तो कहते हैं जनाब दूसरा बड़ी डाढ़ी गाल की थी। अरे जनाब कोई नाराज ना हो जाए तो यार अगर सच्ची बात के ऊपर कोई नाराज होता है तो भले हो, हमें इससे क्या लगे। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। हमें किसी से कोई एतराज नहीं। कोई सच्ची बात से और हक बात से नाराज होता है तो वो हो जाए, लेकिन अगर किसी को बात समझ आ जाए तो फिर वो हमें बताए जनाब आपने बात ठीक की है, हम आपके साथ हैं। लेकिन ये तौफीक भी तो किसी को नहीं होती। ये तौफीक भी तो कभी किसी ने नहीं कहा जनाब आप बात जो करते हैं वो सच्ची कहते हैं, हम आपके साथ हैं। मुड़ के जनाब आप बाहर जाके कहते हैं मौलाना ने जो बात की बड़ी सख्त की है, ये आहिस्ता बात नहीं कर सकते, ये इस अंदाज में क्यों बात करते हैं? जब रसूलुल्लाह की इज्जत और नामूस की बात हो तो बात उसी तरह की जाती है जिस तरह सहाबा किराम ने की, जिस तरह हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने पहरा दिया, जिस तरह हज़रत सैयदना फारूक आज़म ने पहरा दिया और सगे मामू का सर लेके आगे।
जिस तरह अबू उबैदा बिन जर्राह ने पहरा दिया, जिस तरह साद बिन अबी वक्कास ने पहरा दिया, एक जंग के अंदर आपने 1000 तीर हुजूर की तरफ से दुश्मनों की तरफ फेंका और साद बिन अबी वक्कास को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर इस एजाज से नवाजा। लोग कहते हैं फिदा का अबी व उम्मी या रसूलल्लाह, हुजूर ने फरमाया फिदा का अबी व उम्मी या इब्न साद, साद बिन वक्कास मेरे माँ बाप तेरे ऊपर कुर्बान हो जाए। जो नामूस रिसालत के ऊपर पहरा देता है हुजूर से इरशाद फरमा रहे हैं मेरे माँ बाप तेरे ऊपर कुर्बान हो जाए। आप क्या समझते हैं ये वैसे ही बातें हैं? ये सारी बातें हकीकत पर मबनी है, लेकिन हमने कभी सोचा ही नहीं, हमने कभी समझे नहीं। हम कहते हैं जनाब छोड़ो जनाब ये मौलाना की बातें है, ये जनाब वो करे, बस हम जुमा फर्ज पढ़ के भाग जाते हैं, हमें क्या लगे। बच्चियों एक दिन पूछा जाना है, अल्लाह पाक ने जवानों को सामने खड़े करके पूछना है कि हमने तुम्हें जवानी दी थी, बताओ किधर गुजार के आए हो। ऐसा बाद में जिन्होंने कुछ लम्हे गुजारे वो तो अर्ज करेंगे ना, मौला हमने तेरे हबीब के दीन के लिए कुछ वक्त गुजारा था, कोई निशानी तो है ना यार उनके पास, मैं और आप भी कोई निशानी लेके जाए कि कल क़यामत के दिन हुजूर के सामने खड़े होकर अर्ज करें हुजूर और तो कुछ नहीं, बस ये एक निशानी है। चंद लम्हे आपकी मोहब्बत में हम बाहर खड़े हुए थे, लेकिन हमें जनाब वो वक्त ही नहीं मिलता इन बातों का, हम अपने कारोबार में लगे हुए हैं। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि फिर ईमान वालों को हम उनके कौल में साबित रखते हैं। किधर रखते हैं? दुनिया और आखिरत में साबित कदम रखते हैं। जिन्होंने कलमा पढ़ लिया और फिर सारी उम्मीदें अपने रब से बांधे रखी, मालिक रिज्क भी तू ही देगा, इज्जत भी तू ही देगा, तो भाई इज्जत तो रब ने देनी है, मैं के पीछे जूते उठाने की क्या जरूरत है? उधर से क्या ढूंढ रहे हो? या तो होती ना बात ये कि आप किसी जनाब अल्लाह वाले के जूते उठा दे तो उसने तो इज्जत लेके दे सकता था, इसलिए कि उसका रब के साथ ताल्लुक है, उसका रब के साथ कोई ताल्लुक है, उसने अपने रास्ते मजबूत किए हुए, जिनके पास तुम मारे मारे फिरते हो और रात दिन इज्जत के लिए जनाब फिरते रहते हैं और रात दिन वो खुद मांगते हैं। इज्जत उनसे जाके मांगो जिन्हें हुजूर ने अता की हुई है, इज्जत उनसे मांगो, उनके वसीले से मांगो जिन्हें रब ने अपने हबीब के वसीले से अता की हुई। हज़रत सीदना आज थोड़ी सी बंदे को जनाब वो सर का दर्द हो जाए तो नमाज छोड़ देता है, ये कलमे का तकाजा नहीं है। जब कलमा पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाह तो फिर इसका तकाजा, मैं कहता हूँ जनाब मैं सफर में मेरे साथ औरतें भी, आप नमाज कैसे पढ़ूं? हज़रत इमाम अली मकाम के साथ औरतें नहीं थी, मैदान करबला में सुबह से लेकर जोर तक सारा खानदान कटवा के फिर भी जब वक्त आया अपने मालिक की तरफ रुजू किया, मालिक कलमा जो तेरा पड़ा है अब झुकना भी तेरे सामने ही है, झुकना भी तेरे सामने है। आप तो जनाब कलमा की कहीं और, अल्लामा इकबाल कहता है तू जनाब सजदे में झुकता अल्लाह के हाथ है और सोचता किसी और का है, तेरे सजदे कहीं तुझे काफिर न कर दे। ये सोच, ये कौन सी बंदगी हुई जनाब? नमाज में भी हम सोचते हैं बाहर निकल के ये काम करना है, वो छोड़ो इन सोचों को, बस रब के हुजूर जब आ जाओ तो फिर बस अल्लाह के हाथ आज करो, मालिक तू नहीं इज्जत अता करनी, तू नहीं रिस्क अता करना है, तू नहीं हमारी बीमारियों को दूर करना है। कुरान से डर के ये नहीं है मस्जिद छोड़ दो, मस्जिद में आके मस्जिद को आबाद करो और रब से इल्तिजा करो, मालिक की आजमाइश भी तेरी तरफ से है और साबित कदमी भी तूने ही देनी है, शिफा भी तू ही देने वाला है, हमारे पास कुछ नहीं, सोने हबीब का सदका अपने हबीब की उम्मत के ऊपर रहम फरमा। एक दिन इमरान खान ये दुआ करके देखे मुल्क की तकदीर बदलती है कि नहीं, लेकिन जिसे खातमुन नबीयीन नहीं बताया उसने क्या दुआ करनी है उम्मत के लिए। आपको भी धोखा लग जाता है जनाब। एक दफा अक़वाम मुत्तहिदा में जनाब तकरीर कर रहा है तो आप कहते हैं ये खत्म नबूवत का मुहाफिज, वो जनाब वो लाल हवेली वाली सरकार कहती है मैं मुजाहिद खत्म नबूवत, तू कौन सा मुजाहिद खत्म नबूवत है? कभी दिखा ना हमें भी कौन सा तूने जनाब नबूवत के लिए बाहर पहरा दिया हो, एक रात भी बाहर तूने गुजारी हो। मुजाहिद खत्म नबूवत बनने के लिए दुनिया बात करे तो वो नहीं है, मुजाहिद खत्म नबूवत वो है जिसे रसूलुल्लाह बताएगी तू मुजाहिद खत्म नबूवत। लोगों के ख्वाबों में आकर जिसे रसूलुल्लाह बताएगी हमने मुजद्दिद वक्त को भेज दिया है, उसे मुजाहिद खत्म नबूवत कहते हैं। लोगों की गलतफहमियों से बाहर आओ, दीन के लिए कोई काम करो। 20 अप्रैल बहुत करीब आ चुकी है, फ्रांस का सफीर निकलना चाहिए ना? आज खड़ा करके बताएं, फ्रांस का सफीर निकलना चाहिए। ये नहीं है कि हमारी जाती कोई उनसे दुश्मनी है,
हमारी कोई जाती दुश्मनी नहीं। सफीर इसलिए निकलवाना है कि उन्होंने सरकारी इमारतों के ऊपर रसूलुल्लाह के खाके बनाकर क्यों अबेजा किए। हमने उनसे ये बदला लेना है, हमारा बदला बस यही है। फिर वो मालिक बड़ा गैरतमंद मालिक है, वो अपने महबूब की इज्जत के ऊपर मंगोलों के कुत्ते से भी रखवाली करवा लेता है। वो मालिक अबाबील से भी काम ले लेता है। वो मालिक वो किसी को जाया भी नहीं होने देता है। पता है कायदे आज़म ने सिर्फ दीन की बातें की थी। आज कायदे आज़म के अलावा आपका चारा भी नहीं है। जहां चले जाओ बाबा कायदे आज़म के अलावा आपको कहीं कोई पूछने वाला नहीं है। जिसकी जेब में जितने ज्यादा है उसकी उतनी ज्यादा इज्जत होती है। तो पूछो ना कभी कायदे आज़म से, कभी इस्तिफ्सार करो बाबा आपकी तस्वीर नोट के ऊपर क्यों आई। तो और बातें जरूर होंगी कि पाकिस्तान उन्होंने बनाया, लेकिन हमारे उलमा भी साथ मौजूद थे। लेकिन बात यह थी गाजी इल्मुद्दीन का मुकदमा कायदे आज़म ने लड़ा था। दीन के लिए उन्होंने बात की थी। जो दीन के लिए किसी भी बात करते दीन इतनी इज्जत देता है कि लोग देखते रह जाते हैं। कल ये जनाब कौन था और आज क्या बन बैठा है। मैंने कहा कोई बात नहीं, अल्लामा इकबाल से पूछो कल ये क्या था, आज इतनी इज्जत क्यों मिल गई। अल्लामा इकबाल कहता है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे। अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल की